अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। छठे सेमेस्टर की इब्तिदा आज के इस लेक्चर से हम करने जा रहे हैं। आप तमाम का उर्दू शोबे की जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूँ। गुज़िश्ता सेमेस्टर में हमने जिस तरह से कोविड-19 के वबा के चलते ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया गया था, उसी तर्ज पर इस साल भी हमें ऑनलाइन लेक्चर्स इस सेमेस्टर के कम से कम ऑनलाइन लेक्चर्स हमको ऑर्गेनाइज करने हैं। या ऑनलाइन लेक्चर हमने अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। आप YouTube चैनल से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। हर डिपार्टमेंट का जिस तरह से अलहदा से एक डिपार्टमेंटल YouTube चैनल शुरू किया गया है, उसी YouTube चैनल पर रोज़ाना जो हमारा लेक्चर हैं उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। उम्मीद है कि आप तमाम तलबा व तालिबात इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और सरपरस्त यूनिवर्सिटी ने जिस तरह के हमें कुछ हिदायत दी हैं, उनमें से ये भी कहा गया है कि इम्तिहान का जो इनेकाद किया जाएगा वो भी कोशिश की जाए कि 100% ऑनलाइन ही इम्तिहान लिया जाए। तो मुमकिन है कि आप तमाम का इम्तिहान ऑनलाइन ही हो, इसलिए आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि तमाम के तमाम तलबा व तालिबात लेक्चर्स को बगौर समाअत फरमाएं। उससे कुछ रनिंग नोट्स आप खुद तैयार कर सकते हैं। एक मर्तबा हो या 2 मर्तबा हो या 3 मर्तबा हो, आप उसको बार बार सुन सकते हैं। इन तमाम के नतीजे में फिर हम देखेंगे कि आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो जमात BA जमात सुबम के तमाम तलबा और तालिबात का फिर एक मर्तबा मैं इस ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज़ का पहले लेक्चर में इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। और सरपरस्त यूनिवर्सिटी ने हमारी जो छठा सेमेस्टर है आपका और आखिरी सेमेस्टर है आपकी, यहाँ डिग्री ख़त्म होने वाली है, इसलिए भी ये और ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है छठा सेमेस्टर। तो सरपरस्त यूनिवर्सिटी ने जो निसाब हमें मुतय्यन करके दिया है, उसका आज हम इस लेक्चर में तारुफ देखेंगे। इस तारुफ के बाद अगला जो लेक्चर रहेगा वो निसाब या सिलेबस पर मबनी रहेगा। तो जिस तरह से गुज़िश्ता सेमेस्टर में 2 पर्चे थे और
ایک پرچہ جس کا عنوان تاریخ اردو زبان و ادب تھا، اس پرچے کو یا اس پرچے کی درس و تدریس میں نے کی تھی. تو اب چھٹے سیمسٹر میں بھی اسی عنوان کے تحت تاریخ اردو زبان و ادب، اسی عنوان کے تحت نصاب میں شامل پرچہ نمبر 11 ہے. اور اس پرچے کا سلیبس یا نصاب کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے یا اس کی طرف ہم بڑھیں گے. سب سے پہلے اس پرچے میں جو نصاب بنایا گیا ہے اس کے اغراض و مقاصد کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں. شعبہ اردو یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں بورڈ آف اسٹڈیز اردو، ان کی جانب سے جو نصاب کا تعین کیا گیا ہے یا نصاب بنایا گیا ہے یا فریم کیا گیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اردو ادب کی نثری اصناف سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا، پہلا مقصد. دوسرا مقصد ہے کہ اردو کی ادبی تحریکات سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا. دو ہی مقاصد یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. ایک تو اردو ادب کی نثری اصناف سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا، کیونکہ ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اردو کی کچھ نثری اصناف کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. اسی معلومات کو اور زیادہ ان اصناف کا گہرائی سے مطالعہ کرنا یا اسی معلومات میں اضافہ کرنا، اس مقصد کے تحت بی اے تھرڈ ایئر کے نصاب میں نثری اصناف کے معلومات کو شامل کیا گیا. پھر دوسرا جو مقصد بتایا گیا ہے کہ اردو کی ادبی تحریکات سے متعلق معلومات میں اضافہ کرنا. تو ادبی تحریکات جو ہیں اردو ادب کی مختلف ادبی تحریکات ہیں، ان میں سے مخصوص ادبی تحریکات کا ہم کو تفصیلی مطالعہ کرنا ہے. تو چلیے نصاب کی طرف بڑھتے ہیں. تو نصاب میں جن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے اس میں سب سے پہلا ہے اردو کی نثری اصناف کا ارتقاء. کچھ نثری اصناف اردو کی شامل کی گئی ہیں اور ان نثری اصناف کا ارتقاء کس طرح سے ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ کلاسوں میں یا جماعتوں میں ہم نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، جس میں ان کی تعریف، ان کی حیت یا ان کی اجزائے ترکیبی، اس کا ہم نے بھرپور مطالعہ کیا ہے. ساتھ ہی ہم نے اس کا ارتقاء بھی دیکھا تھا، لیکن مختصراً ارتقاء ہم نے دیکھا تھا. اب یہاں پہ نصاب میں جو شامل اصناف ہیں نثر کی، ان کی ارتقاء مفصل طور پر ہم کو دیکھنا ہے، جس میں سب سے پہلی صنف جو شامل کی گئی ہے وہ ہے ڈرامہ. سب سے پہلے ہم مختصراً پھر سے ڈرامے کی تعریف دیکھیں گے اور اس کے فوراً بعد ہم ڈرامے کے ارتقاء پر آئیں گے. اب ڈرامے کی اجزائے ترکیبی پر ہم مفصل بحث نہیں کریں گے، سرسری طور پر اس کی جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ہم ڈرامے کے ارتقاء کی طرف آئیں گے. اور مکمل ڈرامے کا ارتقاء، یعنی کہ پہلا ڈرامہ اردو ادب میں کب لکھا گیا اور آج تک، یعنی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ڈرامے کی کیا صورتحال ہے اور کتنے اردو ڈرامہ لکھنے والے ہیں. اس کے بعد دوسری جو صنف ہے وہ ہے ناول. تو ناول کی بھی اسی طرح سے ناول کا تعریف رہے گی، اس کے اجزائے ترکیبی بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر اس کا ابتدا سے لے کر آج تک ناول میں
कौन कौन सी मनाजिल तय की हैं और किन किन लोगों ने नावल निगारी को उरूज बख्शने में या बुलंदियों तक पहुंचाने में अपनी कोशिशों और काविशों के ज़रिए उसको उरूज बख्शा, इसका भी मुताला करें। उसके बाद तीसरी जो सिंफ है जिसके इंतखाब पर हमको रोशनी डालनी है, मुफस्सिल देखना है, वो है अफसाना। तो फिर अफसाने की तारीफ़ देखेंगे, अफसाने के अज़ाए तरकीबी मुख्तसरन सरसरी जायज़ा लिया जाएगा तारीफ़ का और उसके अज़ाए तरकीबी का। उसके बाद मुफस्सिल तौर पर जिस चीज़ को हम देखेंगे वो है अफसाने का आगाज़ व इर्तिखाब। फिर अफसाने के बाद इंशाइया, उसकी तारीफ़, उसके अज़ाए तरकीबी और उसका आगाज़ व इर्तिखाब। इंशाइया इसको शॉर्ट से कहा जाता है। वैसे बीए सेकेंड ईयर में हमने इंशाइया और खाका, ड्रामा, इंशाइया, खाका, इन तमाम असनाफ का हमने मुताला किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको उसके इर्तिखाब पर मुफस्सिल रोशनी डालनी है। आखिरी जो सिंफ है जिसके इर्तिखाब पर हमें मुफस्सिल रोशनी डालनी है वो है खाका। खाके की इब्तिदा, खाके की तारीफ़, उसके हलियत और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उर्दू अदब में खाके की शुरुआत हुई, उसके नमूने या उसके तश्कीली दौर कैसा था, फिर खाका किस तरह से उरूज पाया, और हम देखेंगे कि खाके ने उरूज पाते पाते आज तक उसकी क्या सूरत हाल है या उसने कौन कौन सी मनाज़िलें तय की हैं, इसका हम मुफस्सिल मुताबिक करेंगे। तो निसाब का आधा हिस्सा उर्दू की नसरी असनाफ जिसमें ड्रामा, नावल, अफसाना, इंशाइया और खाका है, इन तमाम का हमको इर्तिखा देखना है। अब दूसरा जो हिस्सा है निसाब का वो है अदबी तहरीकात। अब ये जो अदबी तहरीकात हैं, जिन तहरीकात ने उर्दू अदब को उरूज बख्शा या उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दी या उर्दू ज़ुबान को तरक्की दिलाने में या बुलंदी तक पहुंचाने में जिन तहरीकात ने कोशिशें की या जिन तहरीकात के ज़रिए कोशिशें की गई, उनमें से मखसूस तहरीकात को निसाब में शामिल किया गया है। इनका हमें मुफस्सिल मुताला करना है। और पहली तहरीक है अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक। अब हम देखते हैं कि इस तहरीक का आगाज़ कब हुआ, इस तहरीक की शुरुआत किसने की, फिर उसके बाद इस तहरीक से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे या मुंसलिक थे और किस किस्म की खिदमत। या हम देखते हैं कि इस तहरीक ने उर्दू अदब की नस्र को मुतासिर किया या नज़्म को मुतासिर किया, इसके असरात क्या हैं, इसका हम तफसीली मुताला करेंगे। दूसरी जो तहरीक है अंजुमन पंजाब की तहरीक। अलीगढ़ तहरीक ही के दौर में चलने वाली एक ऐसी तहरीक थी अंजुमन पंजाब की तहरीक, जिसने उर्दू अदब की ख़ास तौर पर नस्र को लेकर बहुत सारी खिदमत हैं। इनके बारे में हम इस तहरीक के ज़रिए से देखेंगे। फिर तीसरी तहरीक है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की जो तहरीक है, इस तहरीक से वाबस्ता जो उदबा थे या शोरा थे, उन लोगों की खिदमत का हम जायज़ा लेंगे। और आखिरी जो तहरीक निसाब में शामिल की गई है वो है रोमानियत की तहरीक। इसका
इसका आगाज़ किस तरह से हुआ, फिर उर्दू अदब में मुतासिर होकर जब अदब लिखा गया, रोमानियत से मुतासिर होकर, वो अदब रोमानियत तहरीक के ज़ेर असर लिखा गया अदब कहलाया। हम देखते हैं कि इस तहरीक में जो लिखने वाले थे उन लोगों ने रोमानियत को मरकज़ी हैसियत देते हुए अदब या फिर नस्र की मुख्तलिफ़ असनाफ़ तबाज़माई की। तो इनका हम मुफस्सिल जायज़ा लें। तो ये जो दूसरा हिस्सा है अदबी तहरीकात का, इसमें 4 तहरीकात को शामिल किया गया है। अलीगढ़ तहरीक, अंजुमन पंजाब की तहरीक, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ और आखिर है रोमानियत की तहरीक। इस तरह से मुकम्मल सिलेबस 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। आधा तहरीकात पर मबनी है और आधा असनाफ़ के इर्तिक़ा पर मबनी है। ये जो निसाब है 40 मार्क के लिए रहेगा और जो 35 मार्क रहेंगे वो कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी कि सीए के लिए रहेंगे, जिसमें 2 क्लास टेस्ट होंगे और 2 क्लास टेस्ट 10 मार्क के लिए रहेंगे, जिसके 2 टेस्ट के 20 मार्क और 1 असाइनमेंट रहेगा जो 15 मार्क के लिए रहेगा। इस तरह से ये निसाब है और ये है उसके मार्किंग सिस्टम। अब रही बात आखिर में उसका जो नमूना पर्चा है वो किस तरह से है, तो वो तो हम निसाब मुकम्मल होने के बाद या निसाब की तकमील होने के बाद आखिर में भी देखेंगे। लेकिन सरसरी तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि पहला जो सवाल रहेगा नस्री असनाफ़ पर रहेगा, 10 मार्क के लिए रहेगा। याद में भी रहेगा तो नस्री असनाफ़ पर ही क्वेश्चन रहेगा। दूसरा भी रहेगा अदबी तहरीकात पर रहेगा, 10 मार्क के लिए रहेगा। फिर तीसरा जो सवाल रहेगा नस्री असनाफ़ पर रहेगा या अदबी तहरीकात पर, या में जो आएगा अदबी तहरीकात, दोनों में से किसी एक पर आएगा। फिर उसके बाद मुख्तसर नोट लिखे रहेगा, 4 दिए हुए रहेंगे, 4 में से 2 करना है और वो रहेगा 10 मार्क। इस तरह से 40 मार्क हो जाते हैं कुल, और कंटिन्यूस असेसमेंट के 35 मार्क और दोनों मिलाकर मुकम्मल अगर हम पर्चा देखेंगे तो 75 मार्क का रहेगा। तो यह रहा सिलेबस और उसकी मार्किंग सिस्टम। अब इस हिसाब से हम अगले लेक्चर में सबसे पहले जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम शुरुआत करेंगे, उसका पहला जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। शुक्रिया।